Hello friends, welcome to iExamB. So welcome to this session. In this session, we'll see some important general awareness MCQs from the month of July. So in total, we'll be seeing 25 most important general awareness MCQs. In the next video, we'll be continuing with another 25 general awareness MCQs from the month of August. So this video is going to be very important for the upcoming NABARD Grade 2022 examination. सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस लाएं आपके एग्जाम के लिए आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल इफ यू हैव एनी क्वेरीज hello@exambit.com पे आप हमें मेल कर सकते हो या exambit.com विजिट करके हमारे कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जान सकते हो. लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. आपको क्या करना है, वंस यू सी द क्वेश्चन just pause the video and then answer. Who is the author of the book Our India Reflections on a National Betwixt and Between? You need to pause the video and then answer it. एंड में आपको बताना है कि कितना सही हुआ आपका आउट ऑफ दिस 25 क्वेश्चंस. आंसर हियर इज कैप्टन जी.आर. गोपीनाथ. आवर इंडिया रिफ्लेक्शंस ऑन अ नेशन betwixt and between is Captain G.R. Gopinath. So this book describes about Indian business, politics, governance, aviation, and all over societal conditions. So Captain G.R. Gopinath. So here is the next question. First ever Open WTA 250 International Women's Tennis Championship will be hosted by which of the following cities? First ever Open WTA 250 International Women's Tennis Championship. ये कहाँ पे हो रहा है? Pause the video and then answer. Yes, the answer here is Chennai. ठीक है? तो this is happening from September 12th to September 18th. WTA 250 International Women's Open. This is a tennis championship. This is happening in Chennai. Here is the next question. Who has recently won the British Grand Prix? British Grand Prix एक बहुत ही important, बहुत ही popular Grand Prix है. तो you know to remember कि British Grand Prix कौन जीते हैं. Very recent news. Pause the video and then answer. Yes, Carlos Sainz has won this British Grand Prix at Silverstone Circuit in England. This happened in England, Silverstone Circuit. There are many circuits. आपको सर्किट्स का नाम भी याद रख लेना है क्योंकि ब्रिटिश ग्रैंड प्री एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्री होता है. एस्पेरेज ऑफ रेड बुल वो सेकंड आए, हैमिल्टन ऑफ मर्सिडीज वाज थर्ड, कार्लोस सेंज वाज फर्स्ट. हियर इज द नेक्स्ट वन. Akshay Patra Midday Meal Kitchen was recently inaugurated by the Prime Minister of India in which city? The Akshay Patra Midday Meal Kitchen ये कौन सी सिटी में इनाग्रेट किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी? यस, द आंसर हियर इज वाराणसी. ठीक है, वाराणसी में किया गया. तो प्राइम मिनिस्टर विजिटेड वाराणसी जहाँ पे 1800 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिक्लेयर किया. इनमें से अक्षय पात्र मिड डे मील किचन भी एक था. एलटी कॉलेज वाराणसी में हुआ. which has a capacity of cooking midday meals for almost 1 lakh students. 1 लाख स्टूडेंट्स के लिए मिड डे मील बनाने का कैपेसिटी है वो अक्षय पात्र मिड डे मील किचन में एलटी कॉलेज वाराणसी में हो रहा है. Next question. Which country recently announced that professional men's and women's cricketers will be paid the same amount of pay in groundbreaking new 5-year deal? कौन सी कंट्री की क्रिकेट बोर्ड ने बोला है कि उसमें जो मेन एंड वुमेन क्रिकेट टीम है उसमें प्लेयर्स का सैलरी सेम रहेगा? पहला कंट्री है ऐसा करने के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट. यस, द आंसर हियर इज न्यूजीलैंड. ठीक है, न्यूजीलैंड जो प्रोफेशनल मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेटर्स हैं दे विल बी गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ पे. ठीक है, तो इसमें जो टॉप टियर डोमेस्टिक मैचेस होते हैं वो भी इंक्लूडेड है. ये तो ये एक 5-year डील में ये कंफर्म हुआ है, इंक्लूडिंग ODIs, T20s, 4 ट्रॉफी, ड्रीम 11 स्मैश लेवल, सुपर स्मैश लेवल, जितने भी मैचेस हो रहे हैं उसमें मेंस एंड वुमेन्स का सैलरी विल बी द सेम. The government of Uttar Pradesh has invited a troupe from which country to perform in this year's Ramlila celebration in Ayodhya? तो अयोध्या में रामलीला सेलिब्रेशंस में किस कंट्री से स्पेशल इनवाइट हुए हैं ट्रूप्स रामलीला सेलिब्रेशंस के लिए? पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. यस, द आंसर हियर इज रशिया. ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज इनवाइटेड रशियन ट्रूप फ्रॉम मॉस्को जो कि रामलीला सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे. कब हो रहा है? अक्टूबर 22 से 28.
Here is the next question. The Fields Medal is given in which field? जो फील्ड्स मेडल है ये कौन से फील्ड में दिया जाता है? ऑप्शंस आर मिलिट्री, सिविल सर्विस, मैथमेटिक्स, साइंटिस्ट, ऑल ओवर साइंस और सोशल सर्विस। तो किस फील्ड में दिया जाता है फील्ड मेडल? पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। यस, सी इज द आंसर। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इसे। नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका फील्ड्स मेडल। देख लेते हैं क्या है फिर। इस बार जो 2022 के विनर्स हैं, 4 विनर्स हैं, आप देख रहे हो, ह्यूगो डोमिनी, जून हू, जेम्स मैनार्ड एंड मारियाना वियाजोस्का। तो जो मारियाना है वो यूक्रेन से हैं, तो यूक्रेन वॉर की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था ये फील्ड्स मेडल इस बार। तो बहुत अच्छा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन कुछ आ सकता है। तो ये जो हेलसिंकी फिनलैंड में इसका मतलब अवार्ड दिया गया जो फील्ड्स मेडल है। फील्ड्स मेडल इज द हाईएस्ट ऑनर फॉर अ मैथमेटिशियन। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियंस इसे सिलेक्ट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें गोल्ड मेडल मिलता है। और फील्ड्स मेडल एंड केस प्राइज आर फंडेड बाय ट्रस्ट एस्टेब्लिश बाय जेसी फील्ड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एक ट्रस्ट है। तो इसे ही वो ट्रस्ट इसे फंड करता रहता है। तो फर्स्ट 1936 ऑस्लो नॉर्वे में दिया गया था। ठीक है, फील्ड्स मेडल इज फॉर मैथमेटिशियंस। Here is the next question. Which international organization group recently pledged 600 billion for a partnership for global infrastructure and intelligence? तो ये 600 बिलियन प्लेज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस किस ऑर्गेनाइजेशन और किस ग्रुप ने किया है अभी रिसेंटली? यस, द आंसर हियर इज G7। तो G7 ने आप देख रहे होगे 600 बिलियन पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस किया है। तो जैसे आपको पता होगा कि चाइना क्या है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्स, उसको काउंटर करने के लिए आप देख रहे हो कि ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस किया गया है। तो G7 में कौन कौन कंट्रीज आते हैं? आपका आता है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। तो दीज आर द 7 कंट्रीज जो G7 बना रहे हैं। तो इन्होंने $600 बिलियन का ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस बनाया है टू काउंटर द बॉर्डर रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। The event of Digital India Week 2022, it was celebrated in which of the following Indian cities? ये जो डिजिटल इंडिया वीक हुआ ये कि कहाँ किस जगह पे सेलिब्रेट हुआ? इसमें एक फंक्शन हुए थे। तो इसमें 5 न्यू प्रोजेक्ट्स ऑल्सो लॉन्च हुए थे। आपको खुद को जज करना है कि इफ यू रिमेम्बर क्या क्या 5 नए स्कीम्स या इनिशिएटिव्स थे जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ड्यूरिंग दिस डिजिटल इंडिया वीक 2022। पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। यस, द आंसर हियर इज गांधीनगर में। तो ये जो हुआ था, आप देख रहे हो कि 4th to 6th में फिजिकल इवेंट्स हुए थे, 7th एंड 9th में इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज हुआ था वर्चुअल फॉर्मेट में। तो ये 4th से 9th जुलाई हुआ था आपका डिजिटल इंडिया वीक। तो इसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए थे एज वेल एज कुछ नए इनिशिएटिव्स भी लॉन्च हुए थे। तो दिस हैपेंड इन गांधीनगर। Okay, here is the next question. Which of the following global restaurant chain company had announced the launch of its first all-women drive-through restaurant in Gujarat? All-women drive-through restaurant in Gujarat किस रेस्टोरेंट चेन ने इसे डिक्लेयर किया है? Pause the video and then answer. Yes, it is मैकडी। ठीक है, मैकडोनल्ड्स का जो इंडिया यूनिट है उन्होंने लॉन्च किया है एकता नगर गुजरात में ऑल वुमेन ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट एक बनाया जाएगा। ठीक है, here is the next question. Recently the US and which country signed a joint deal to deny Iran nuclear arms? तो आपको पता होगा कि यूएस का ईरान के साथ न्यूक्लियर डील था एंड यूएस बैक ट्रैक्ड फ्रॉम दैट न्यूक्लियर डील इस वजह से कि ईरान वो डील को मान नहीं रहा है, ये उनका ऑब्जेक्शंस था। तभी यूएस ने किस कंट्री के साथ साइन किया है कि
टू एंश्योर कि ईरान को न्यूक्लियर आर्म्स ना मिले। यस, द आंसर हियर इज इजराइल। ठीक है, तो यायर लैपिड एंड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जॉइंटली उन्होंने साइन किया एक डील जिसमें ईरान को न्यूक्लियर डील कैसे ना मिले उसको इंश्योर किया जाएगा। तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड गाइस, नबार्ड ग्रेडे का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑनलाइन कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें आपको फेज 1 फेज 2 एंड इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में आपको हेल्प मिलेगा। लाइव क्लासेस होता है, स्टडी नोट्स हर एक टॉपिक का मिल जाता है आपको, वीडियोस भी मिलते हैं एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑल्सो मॉक टेस्ट। तो इसमें यू कैन गेट फ्लैट 75% ऑफ बाय यूजिंग दिस कोड NAB75। टू एनरोल टू आवर कोर्सेस iexambit.com आप विजिट कर सकते हो। Okay, here is the next question. Recently, which global tech firm had bought 1.2% stake in Bharti Airtel for 700 million? तो किस कंपनी ने 700 मिलियन देके 1.2% स्टेक भारती एयरटेल में खरीदा है? बहुत चर्चा में था ये जो एक्विजिशन था, ये डील था, आपको बताना है। पॉज द वीडियो देन आंसर। यस, द आंसर हियर इज गूगल। ठीक है, तो गूगल ने 71 मिलियन शेयर्स वर्थ ऑफ 700 मिलियन यूएस डॉलर देके खरीदा फ्रॉम भारती एयरटेल। ठीक है, recently the Department of Consumer Affairs has launched a mascot for empowering consumers and generating awareness for their rights. What is the name of that mascot? तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक मास्केट लॉन्च किया, क्यों किया? कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स एंड जनरेटिंग अवेयरनेस। तो मास्केट का नाम क्या है, आपको बताना है कि मास्केट का नाम क्या है। पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। यस, द आंसर हियर इज जागृति। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जागृति नाम का एक मास्केट लॉन्च किया है। तो मास्केट क्यों यूज होगा? टू जनरेट कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट वेरियस थीम्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट। जितने भी चीजें किया जाता है डिपार्टमेंट के तरफ से, वो सब चीजों के अवेयरनेस बढ़ाएगा। जागो ग्राहक जागो, आपको पता होगा कि उनका डिपार्टमेंट कंज्यूमर अफेयर्स का टैगलाइन है। Here is the next question. Which state has become first in India to have its own internet service K phone? तो कौन सी स्टेट का ये है K phone? उनकी स्टेट का ओन इंटरनेट सर्विस है K phone। Pause the video and then answer. Yes, it is Kerala। ठीक है, K phone, K stands for Kerala। तो K phone network will function as a strong foundation for all government to government, government to citizen and business to citizen interactions। ठीक है, तो ओन इंटरनेट सर्विस जो कि है के फोन नेटवर्क, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क और के फोन। तो 15th क्वेश्चन, रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज गिवन अप्रूवल टू रीनेमिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? कौन से सिटीज का रीनेमिंग के लिए अप्रूवल मिल गया है महाराष्ट्र में? पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। यस, इट इज ई, औरंगाबाद एंड ओस्मानाबाद। बोथ औरंगाबाद एंड ओस्मानाबाद विल बी, उनका नाम चेंज होगा। छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद हो जाएगा छत्रपति संभाजीनगर एंड धाराशिव होगा उस्मानाबाद। तो ये दोनों सिटीज का नाम चेंज के लिए अप्रूवल मिल चुका है बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ओके, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ केवीआईसी? हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नया चेयरमैन केवीआईसी का कौन है? You need to pause the video and then answer. Yes, देख रहा हूँ मनोज कुमार। ठीक है, अपॉइंटमेंट से नबार्ड हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है हर साल इन जीए सेक्शन। तो इस बार केबीआईसी के अपॉइंटमेंट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, देखेंगे, और एक हुआ है नीति आयोग का। तो ये जितने भी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं जुलाई एंड अगस्त, जून जुलाई अगस्त में, दोस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केबीआईसी का नया चेयरमैन है मनोज कुमार। Filmmaker K.P. Kumaran has been chosen for the prestigious J.C. Daniel Award for 2021. The award has been conferred by which state government? तो J.C. Daniel Award कौन सी स्टेट गवर्नमेंट देता है? इसमें K.P. Kumaran को सिलेक्ट किया गया है। Pause the video and then answer. Yes, it is Kerala। ठीक है, तो केरला दिया जाता है, मलयालम सिनेमा के ऊपर दिया जाता है जेसी डैनियल अवार्ड। अवार्ड्स से भी हमेशा एक दो क्वेश्चंस आते हैं अवार्ड के जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, तो आपको अच्छे से याद रखना है। जेसी डैनियल अवार्ड केपी कुमरन को दिया गया बाय
Kerala government. What is the length of recently inaugurated Bundelkhand Expressway that will connect Chitrakoot in the underdeveloped Bundelkhand region with the Lucknow Agra Expressway? ठीक है, चित्रकूट को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में ज्वाइंट करने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया जो कि बुंदेलखंड रीजन देके पास करेगा। तो इसका टोटल लेंथ कितना है आपको बताना है। पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। यस, इट इज 296 किलोमीटर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया था इन जलौन डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। तो इसका टोटल लेंथ है 296 किलोमीटर। ठीक है, तो चित्रकूट को ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में ज्वाइंट कराएगा। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बहुत अच्छे से याद रखना है, 296 किलोमीटर का लेंथ है इसका। ठीक है, तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड Sprint Challenges, an initiative to develop to usage of indigenous technology in the Indian Navy. Sprint Challenges प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हम नेवी में यूज कर पाए। तो व्हाट इज द पी स्टैंड फॉर इन स्प्रिंट? जो हमारे इंडिया का ओन टेक्नोलॉजी है हम उसे इंडियन नेवी में कैसे यूज कर पाए, इसलिए स्प्रिंट चैलेंज लॉन्च किया गया था। तो पी स्टैंड्स फॉर, यस, पी स्टैंड्स फॉर पोल वॉल्ट। ठीक है, पोल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो NIO जो है नावल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था एंड वहाँ पे स्प्रिंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, सपोर्टिंग पोल वोल्टिंग इन R&D थ्रू आइडेक्स, NIO एंड TDSE। तो ये था आपका स्प्रिंट चैलेंजेस। आइडेक्स आपको पता होगा, जो डिफेंस सेक्टर में हमारे जो प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप्स को कैसे प्रमोट किया जाएगा, ये उसका ऑब्जेक्टिव था। तो इसमें जाके प्राइम मिनिस्टर ने स्प्रिंट चैलेंजेस लॉन्च किया। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट? नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कौन सी डे में ऑब्जर्व करते हैं हम? यस, इट इज 18th जुलाई। ठीक है, जुलाई 18th में हम नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है? एनुअल कमेमोरेशन टू रेज अवेयरनेस ऑफ अ मैन whose legacy revolutionized 20th century। तो नेल्सन मंडेला का जो लेगेसी है उसे उनके रिस्पेक्ट में जुलाई 18th को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व करते हैं। Here is the next question. Which state recently got AI powered tool for fast disposal of cases at Lok Adalat? Artificial intelligence powered tool for fast disposal of cases at Lok Adalat कौन सी स्टेट में ये हुआ है? यस, द आंसर हियर इज राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान के कोर्ट्स में आप देख रहे हो कि AI पावर्ड टूल फॉर फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस यूज हुआ रहा है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये ऐसा एग्जैक्ट कुछ भी होता है लीगल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसे लास्ट ईयर के एग्जाम में भी एक आया था कि कौन से समथिंग रिलेटेड टू यहाँ पे लीगल और समथिंग रिलेटेड टू कोर्ट्स, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था मुझे याद नहीं है, लेकिन इस रिलेटेड आ रहा था। तो आप ये भी अच्छे से देखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर टूल कहाँ पे लग रहा है? राजस्थान में। A book, The Dharma of Justice in the Sanskrit Epics, debates on gender, varna and species, has been authored by whom? तो ये बुक का ऑथर कौन है? बुक का नाम बहुत लंबा है, धर्मा ऑफ जस्टिस इन द संस्कृत एपिक्स, डिबेट्स ऑन जेंडर, वर्ना एंड स्पीसीज। पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से हमेशा एक क्वेश्चन आता है। द आंसर हियर इज रूथ बनीता। ठीक है, रूथ बनीता ने धर्मा ऑफ जस्टिस इन द संस्कृत एपिक्स इसे ऑथर किया है। तो आप बहुत अच्छे से याद रख लेना इसे, बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Recently, Tamim Iqbal announced retirement from the T20 cricket, international cricket. He plays from which cricket team? कौन से कंट्री से प्ले करते हैं तामीम इकबाल? ठीक है, T20 क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया। कौन से कंट्री से खेलते हैं वो? यस, बांग्लादेश। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ओपनर एंड वनडे इंटरनेशनल कैप्टन तामीम इकबाल, उन्होंने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया। तो बांग्लादेश के प्लेयर। Recently, which of the following mobile-first credit card firm became the 104th unicorn of India? 104th unicorn of India. ठीक है, यूनिकॉर्न कब बनता है? कोई एक स्टार्टअप का वैल्यूएशन जब $1 बिलियन टच होता है तो दैट कंपनी बिकम
यूनिकॉर्न। तो 104th यूनिकॉर्न इज वन कार्ड, ठीक है, वन कार्ड, मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड फॉर्म। मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड्स होता है आपका पूरा ऐप में ही सेटअप हो जाएगा आपका मोबाइल में, यू कैन यूटिलाइज, जैसे आपका नॉर्मल क्रेडिट कार्ड होता है वैसे फोन पे आप यूज करोगे इसे। तो उनको वो बन गया अभी 104th यूनिकॉर्न इन इंडिया। तो आपको ये भी याद रखना है इंडिया का पहला यूनिकॉर्न कौन है, इन मोबी। इन मोबी वाज द फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ कंट्री, जो कि 2011 में अनाउंस हुआ था कि ये पहला यूनिकॉर्न है। न्यू बैंक 100th, न्यू बैंक ओपन वाज 100th यूनिकॉर्न इन द कंट्री। फिजिक्स वाला 101st यूनिकॉर्न ऑफ द कंट्री। तो ये 104th में आप देख रहे हो कि वन कार्ड। Okay. Recently, which of the following Indian firm has bought the majority stake in Israel's Hafia fort? ठीक है, तो इजराइल का हाइफा पोर्ट में कौन सी इंडियन फर्म ने मेजोरिटी स्टेक खरीदा है? हाइफा पोर्ट ऑफ इजराइल। पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। यस, इट इज अदानी ग्रुप। ठीक है, तो अदानी ग्रुप ने वर्थ ऑफ 1.18 बिलियन यूएस डॉलर में एक मेजोरिटी स्टेक खरीदा, जो कि है हाइफा पोर्ट में। ये एक मेजर ट्रेड हब है मेडिटेरेनियन कोस्ट में, तो उसका जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है उसके लिए भी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो इस अदानी ग्रुप ने इसे खरीदा है। द न्यू ग्रुप विल ऑपरेट द एयरपोर्ट टिल 2054 तक ऑपरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी अदानी ग्रुप ने ले लिया है। ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा एंड आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सही निकले होंगे। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू एनरोल टू आवर कोर्सेज, जिसमें आपको फेज 1 का पूरा सपोर्ट एज वेल एज फेज 2 में इंक्लूडिंग आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग सब कुछ आपको कवर किया जाएगा। तो टू एनरोल टू आवर कोर्सेज exambit.com पे आप विजिट करो, and by using this code NAP75 you can get flat 75% off in our courses. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपका कोई भी क्वेरी है hello@exambit.com पे आप हमें मेल कर सकते हो टू नो मोर अबाउट आवर कोर्सेज, और हमारा करंट अफेयर्स अपडेट जो डेली अपडेट BPDR डाउनलोड करने के लिए exambit.com आप विजिट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।